کینال روڈ بلاک ہونے سے اہم شاہراہوں پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی ہیں۔ شہری سڑکوں پر خوار ہو رہے ہیں جبکہ ٹریفک پولیس بے بس دکھائی دے رہی ہے۔ صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ وزیر اعظم کا دورہ لاہور لاہوریوں کے لیے وبال جان بن گیا ہے۔ وزیر اعظم کی رہائش گاہ زمان پاک کے بعد اس وقت ایڈن ہاؤسنگ سوسائٹی کے متاثرین سراپا احتجاج ہیں، جس کی وجہ سے کینال روڈ پر ٹریفک بری طریقے سے جام ہو چکا ہے اور یہی نہیں، ٹریفک پولیس بھی بے بس دکھائی دیتی ہے۔ کینال روڈ بلاک ہونے سے اہم شاہراہوں پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ چکی ہیں۔ شہری سڑکوں پر خوار ہو رہے ہیں جبکہ ٹریفک پولیس کہیں بھی دکھائی نہیں دیتی۔ لمبی لمبی قطاریں 24 نیوز کی سکرین پر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ گاڑیوں کی اس وقت زمان پارک کے باہر احتجاج کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے آج آنا ہے لاہور اور اس کے پیش نظر احتجاج کرنے والے بھی تیار ہیں۔ جی بالکل، احتجاج بھرپور کیا جا رہا ہے۔ ایڈن ہاؤسنگ سوسائٹی کے یہ متاثرین ہیں جو کہ اس وقت وزیر اعظم کے گھر زمان پاک کے باہر اس وقت احتجاج کر رہے ہیں، جس کے بعد یہ صورتحال ہے کہ اس وقت ٹریفک جو ہے کینال روڈ پر بلاک ہو چکی ہے۔ شہری اس کی وجہ سے پریشان ہیں اور اس وقت یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، لمبی قطاریں ہیں اور کینال روڈ پر اس وقت ٹریفک شدید متاثر ہے۔ لاہور پہنچ گئے ہیں، پنجاب حکومت کی 100 روزہ کارکردگی کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم اپٹما کی تقریب میں بھی شرکت کریں گے۔ عمران خان وزیر اعظم پاکستان کا مختصر سا دورہ لاہور اور پنجاب حکومت کی 100 دن کی کارکردگی کا جائزہ لیں گے۔ اس سلسلے میں ایک تقریب رکھی گئی ہے، اس میں شرکت کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ وزیر اعظم اپٹما کی تقریب میں بھی خطاب کریں گے، شرکت کریں گے۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، وزیر اعظم پاکستان ایک مختصر سے دورے پر لاہور پہنچ گئے ہیں۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ حکومت پنجاب کی 100 دن میں کیا کارکردگی رہی ہے، پنجاب کابینہ نے کون کون سے کام کیے ہیں، اس پر ایک تقریب رکھی گئی ہے جس میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان شرکت کریں گے اور تمام تر رپورٹ پیش کی جائے گی۔ وزیر اعظم کو وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی ملاقات ہوگی وزیر اعظم پاکستان کی۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان پہنچے ہیں لاہور۔ ایک دن کا یہ مختصر سا دورہ ہے اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ 100 دن میں پنجاب کابینہ نے کون کون سے اقدامات کیے ہیں، کس نے کیا کام کیا ہے، تمام تر کارکردگی رکھی جائے گی ابوظہر وزیر اعظم کے سامنے۔ جی بالکل، اجلاس میں شرکت کریں گے، صدارت کریں گے اس کے بعد آج تقریب رکھی گئی ہے جس میں انہوں نے خطاب بھی کرنا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان آج لاہور میں موجود ہوں گے، 100 روزہ پنجاب حکومت کی جو کارکردگی ہے اس کے اوپر رپورٹ لیں گے اور جو تقریب رکھی گئی ہے اس میں خطاب کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپٹما کے رہنما سے ملاقات بھی کرنی ہے، ادھر بھی ایک تقریب ہے جس میں وزیر اعظم نے پہنچنا ہے اور وہاں پر بھی خطاب کرنا ہے۔ تو آج یہ شیڈول ہے اور اس وقت وزیر اعظم عمران خان جو لاہور میں موجود ہیں، آپ مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو ان کا قافلہ ہے وہ رواں دواں ہے۔ ہاں، لیکن یہ بھی بات ہے ابوظہر کہ زمان پارک جو وزیر اعظم کی رہائش گاہ ہے، اس سے پہلے ہم نے وہ بھی بتایا کہ اس کے باہر احتجاج بھی کیا جا رہا ہے، تو توقع یہ بھی کی جا رہی ہے کیونکہ جو لوگ وہاں پر موجود ہیں ان کا مطالبہ یہی ہے کہ وزیر اعظم ہماری بات سنیں، ہماری صدا سنیں، تو اس پر بھی شاید متوقع ہے کہ وزیر اعظم جو ہے وہ ان کی بھی کوئی سنوائی ہو، بات چیت سن سکے۔ لیکن وزیر اعظم کا جو دورہ ہے وہ بڑا مختصر سا ہے، ایک دن کا دورہ ہے اور اسکیجول جو ہے وہ بڑا ٹائٹ ہے کیونکہ وزیر اعظم پاکستان نے پنجاب کابینہ سے بھی ملنا ہے، ان کی کارکردگی کا جائزہ بھی لینا ہے، ساتھ ہی ساتھ وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی ملاقات ہوگی، ان سے بھی تفصیلات حاصل کریں گے اور تقریب بھی رکھی گئی ہے اس سلسلے میں جس میں شرکت کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اپٹما کے رہنما جو ہیں ان سے بھی ملاقات کی جائے گی اور ایک خطاب بھی متوقع ہے وزیر اعظم پاکستان کا کیونکہ اپٹما کی جانب سے ایک تقریب رکھی گئی ہے جس میں وزیر اعظم کو مدعو کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم وہاں جائیں گے، خطاب کریں گے اور دیگر مسائل پر بھی گفتگو ہوگی۔ وزیر اعظم لاہور پہنچ گئے ہیں، ایک دن کا یہ مختصر سا دورہ ہے، لیکن وزیر اعظم کی آمد سے پہلے جب سے ہی یہ بات سامنے آئی ہے کہ وزیر اعظم لاہور کا دورہ کر رہے ہیں، وزیر اعظم کی رہائش گاہ زمان پارک کے باہر احتجاج کا سلسلہ بھی صبح سے ہی جاری ہے۔ جی بالکل، پروٹوکول بھی جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، سڑکیں خالی کر دی گئی ہیں اور بھرپور طریقے سے انتظامات جو کیے گئے ہیں وزیر اعظم کی سیکیورٹی کے حوالے سے یہ مناظر ہیں اس وقت جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، شاہانہ پروٹوکول ہے اور ساتھ ساتھ سڑکیں خالی ہیں، راستے کلیئر ہیں اور وزیر اعظم کا قافلہ رواں دواں ہے۔ بالکل، وی وی آئی پی کلچر کا خاتمہ کتنی حد تک ہوا ہے، کس قدر ہوا ہے،
ये आप इस प्रोटोकॉल को देखकर लगा सकते हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जब यहाँ पर पहुँचे हैं लाहौर में, तो जहाँ से उनका गुजर है वहाँ पर ट्रैफिक का निज़ाम तो बुरी तरह मुतासर हो ही चुका है, लेकिन आम आवाम ख्वार होकर रह गए हैं। वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल, शाहाना प्रोटोकॉल, 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि कई गाड़ियों का ये काफिला है जो वज़ीर आज़म का काफिला है, और लाहौर का एक दिन का दौरा, लेकिन एक दिन के दौरे के लिए इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल लगाया गया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान एक दिन के दौरे पर लाहौर पहुंचे हैं, लेकिन लाहौरियों की ज़िंदगी वबाले जान बन चुकी है, क्योंकि एहतजाज भी किया जा रहा है ज़मान पार्क के सामने, और उस वजह से कैनाल रोड भी बुरी तरह ब्लॉक हुई है, ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर हुई है। आम शहरी जो घरों से बाहर हैं, उनको घर जाने में, उनको अपने मुकर्रर रास्तों पर जाने में मुश्किलात का सामना है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर लाहौर तो पहुंच चुके हैं, लेकिन वबाले जान बन चुका है, क्योंकि लाहौरियों की ज़िंदगी इस वक्त दरहम बरहम है, बुरी तरह मुतासर हो रही है। ट्रैफिक का कोई निज़ाम ही नहीं है, ट्रैफिक पुलिस कहीं नज़र ही नहीं आती है। केनाल रोड की बात की जाए तो ज़मान पार्क के सामने जो एहतजाज इस वक्त किया जा रहा है ईडन हाउसिंग सोसाइटी के मुतासरीन की जानिब से, उनकी जानिब से भी जो एहतजाज किया जा रहा है उसकी वजह से भी ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह मुतासर है। केनाल रोड ब्लॉक है और वहाँ से गुजर नहीं हो पा रहा, लेकिन उसको संभालने के लिए भी कोई प्लान मुरतब नहीं किया गया। ट्रैफिक पुलिस कहीं पर नज़र नहीं आ रही। और अगर प्रोटोकॉल की बात की जाए तो वज़ीर आज़म का अपना प्रोटोकॉल माशाल्लाह है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, कई गाड़ियों का काफिला है जो लाहौर पहुंचा है। और इसी शाहाना प्रोटोकॉल के साथ वज़ीर आज़म दीगर जगहों पे भी जाएंगे, शिरकत करेंगे, तकरीब में भी जाएंगे, तो लाहौर की ट्रैफिक का तो आज कोई पुरसाने हाल नहीं। सिक्योरिटी के पेश नज़र ये इंतजाम जो किए गए हैं आप देख सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुँचे और सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त किए गए, और साथ साथ ये प्रोटोकॉल भी आप देख सकते हैं, सड़कें जो हैं वो क्लियर कराई गई हैं। और अगर दूसरी जानिब बात की जाए केनाल रोड की, तो वहाँ पर इस वक्त शदीद ट्रैफिक जैम है, क्योंकि इस वक्त एहतजाज किया जा रहा है वज़ीर आज़म इमरान खान के घर ज़मान पार्क के बाहर ईडन हाउसिंग सोसाइटी के मुतासिरीन की जानिब से। तो यही सूरत हाल आप देख सकते हैं, मनाजिर आपके सामने हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान लाहौर के एक रोज़ा दौरे पर 100 रोज़ा कारकर्दगी पंजाब हुकूमत की उसका जायज़ा लेंगे, और साथ साथ जो आज तकरीब रखी गई है उसमें उन्होंने शिरकत करनी है, इजलास की सदारत करनी है काबीना के इजलास में। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए एप्टमा के इजलास की, तो वहाँ पर भी शिरकत करेंगे, और एप्टमा के रहनुमाओं से भी वज़ीर आज़म इमरान खान आज मिलेंगे और वहाँ पर भी तकरीब से खिताब करेंगे। तो ये है आज का शेड्यूल। इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान आज लाहौर के दौरे पर, और यही सूरत हाल अभी आपको आगाह करें कि इस वक्त ट्रैफिक की जो रवानी है लाहौर शहर के आम तरीन शाहराहों पर शदीद मुतासिर है। नीचे उतार लिया गया है। जी हाँ, इस शख्स को नीचे उतारा जा रहा है। फयाज नामी शख्स का ताल्लुक सरगोदा से बताया जाता है। उसने छलांग लगाने की धमकी दी और मुतालबा किया था कि उसे वजीर आजम बनाया जाए, और वजीर आजम इमरान खान खुद उसे मिलने आए, उसके मसाइल सुने। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। शख्स को तो उतार लिया गया है, लेकिन मुतालबा बड़ा अजीब सा इसका सामने आया है। वो कहता है कि मुझे वजीर आजम पाकिस्तान बनाया जाए और मैं मुल्क के मसाइल हल कर दूंगा। ये शख्स जो मोबाइल टावर पर सुबह से ही चढ़ा हुआ है, रेस्क्यू एहलकारों ने भी बारहा कोशिश की इस शख्स को नीचे उतारने की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। बिलाखिर पुलिस की कोशिशों से, काविशों से, रेस्क्यू टीमों की काविशों से इस शख्स को नीचे उतार लिया गया है। आपको बताएं कि नून लीग रहनुमा ख्वाजा साद रफी का कहना है कि समझौता नहीं करेंगे, हम समझौता ना करने की सजा पा रहे हैं। मेरे वालिद को भी हमेशा इस बात की सजा मिलती रही थी और हम भी सजा के लिए तैयार हैं। वो एहतसाब अदालत लाहौर पहुंचने पर सहाफियों से गुफ्तगू कर रहे थे। सर क्या कहेंगे अपने केसेस के हवाले से? केसेस हैं कोई नहीं, गिरफ्तार पहले की है, अब सबूत बाद में ढूंढ रहे हैं, तो ढूंढने से सबूत कुछ किया होगा तो मिलेगा ना। लेकिन जो हमने मौक़िफ़ सियासी हमेशा अख्तियार किए रखा है, आइन और अवाम की हुक्मरानी का और वोट की हुकूमत का, उसकी सज़ा मेरे वालिद को भी मिली है, मुझे भी मिली है, मेरे भाई को, मेरी वालदा ने भी वो सज़ा काटी। 71 साल से हम ये कीमत अदा कर रहे हैं, जब तक जिंदा ये कीमत अदा करते रहेंगे मौक़िफ़ नहीं बदलेंगे। आइए चले।
आशाना इकबाल हाउसिंग स्कीम केस की बात करें तो लाहौर की एहतसाब अदालत में ज़िमनी रेफरेंस दायर कर दिया गया है। ज़िमनी रेफरेंस में 13 अफराद के नाम जो हैं वो दिए गए हैं। 13 अफराद को नामजद किया गया है। शहबाज शरीफ, फवाद हसन फवाद, आहद चीमा ज़िमनी रेफरेंस में नामजद किए गए हैं, जबकि नदीम ज़िया, कामरान क्यानी, शाहिद शफीक, बिलाल कुदवाई का नाम भी शामिल है। मुनीर ज़िया, खालिद हुसैन, अली साजिद, चौधरी शफीक, इम्तियाज हैदर के नाम भी इसमें शामिल हैं। अली तरी ने पीएसएल की छठी टीम को नाम देने के लिए लोगों से राय मांग ली है। अली तरी ने ट्वीट किया है कि मेरी टीम के नाम में मुल्तान जरूर होगा, ताहम सुल्तान को तब्दील करना है। ऐसा नाम तजवीज करें जो जनूबी पंजाब की नुमाइंदगी भी करे। जिसके नाम पर इत्तफाक हो गया उसे अपने साथ ये मैच दिखाऊंगा। डीजीएसपीआर के क्रिकेट खेलने की फुटेज मीडिया पर वायरल हो गई है। एसपीआर मेजर जनरल आसिफ गफूर रात 2:30 बजे कराची की सड़कों पर नौजवानों के साथ क्रिकेट खेलते रहे। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने बैटिंग के जौहर दिखाए, खूब चौके छक्के लगाए। शहरी डीजीएसपीआर के साथ घुल मिल गए और सेल्फियां भी बनाई। ऐवान सदर के दरवाजे आवाम के लिए खुलते ही लोगों का रश लग गया है। शहरियों ने ऐवान सदर को आवाम के लिए खोलने के इकदाम को सराहा है। इस वक्त 24 न्यूज की नुमाइंदा सबा बजीर भी ऐवान सदर में मौजूद हैं। उनसे जानते हैं। सबा, बताइएगा शहरियों के तासुरात क्या हैं? बिल्कुल, इस वक्त मैं ऐवान सदर के अंदर मौजूद हूँ। आज छुट्टी का दिन था इस्लामाबाद के शहरियों के लिए। एक और खुशखबरी थी क्योंकि आज दूसरी बार ऐवान सदर शहरियों के लिए खोला गया है। यहाँ पर इस्लामाबाद समेत काफ़ी इलाकों से, यहाँ तक कि बलूचिस्तान से भी लोग यहाँ पर आए हैं जिन्होंने ऐवान सदर के अंदर की सैर की है। इस वक्त मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं आज छुट्टी का दिन उन्होंने ऐवान सदर में घूमते हुए कैसा गुजारा। क्या कहेंगे, आज आप ऐवान सदर आए हैं, कैसा लग रहा है? आज ऐवान सदर में बहुत ज़्यादा हमें आकर खुशी हुई है, क्योंकि ये काम जो अभी आज हुआ है, मतलब ये गवर्नमेंट ने किया है, ये 1947 के साथ ही होना चाहिए था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुबह का भूला शाम को आ जाए तो उसको भूला हुआ नहीं कहते। बहुत अच्छा गवर्नमेंट का इक़्तिदाम है और हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ये फैमिली खुश है क्योंकि इन्होंने ऐवान सदर देखा है। मेरे साथ बच्चियां भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं उनको ऐवान सदर कैसा लगा। क्या कहेंगी, आप यहाँ पर आई हैं आज पहली दफ़ा, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। यहाँ की हर चीज़ बहुत अच्छी थी, लेकिन यहाँ पर एक ये था कि हमें मोबाइल अलाउ नहीं था और हम लोग अपनी पिक्चर्स नहीं बना सके। ओहो, बच्चियों का दुख तो आपने सुना कि मोबाइल फ़ोन यहाँ पर सिक्योरिटी की वजह से बंदिश है मोबाइल फ़ोन लाने के लिए, जिसकी वजह से यहाँ पर जितनी भी फैमिलीज़ आ रही हैं वो कह रही हैं कि इस हसीन यादों को वो तस्वीरों के ज़रिए महफूज नहीं कर सके। खैर, इस बात का तो कोई दुख नहीं, लेकिन ऐवान सदर की सैर करते हुए आवाम बहुत ज़्यादा पुरजोश है क्योंकि दूसरी बार ऐवान सदर को खोला गया है और आज यहाँ पर लोगों का बहुत ज़्यादा रश है। शुक्रिया सबा, कर रही थी। मजीद खबरें इजाफा कर दिया है। कराची से लाहौर इस्लामाबाद जाने वाले मुसाफिरों से 37,000 रुपए तक यकतरफा किराया वसूल किया जाने लगा है। कराची से लाहौर के लिए मामूल का टिकट 12,000 रुपए है, लेकिन टिकट 26 से 36,000 रुपए का कर दिया गया है। आपको बताएं कि मुल्क भर में मुख्तलिफ एयरलाइंस ने अचानक एयर टिकट्स के कीमत में इजाफा कर दिया है और 2 से 4 गुना ये इजाफा किया गया है। कराची से लाहौर और फिर इस्लामाबाद जाने वाले मुसाफिरों से 37,000 रुपए तक यकतरफा किराया वसूल किए जाने लगा है। कराची से लाहौर के लिए मामूली सा टिकट जो पहले 12,000 रुपए में दस्तयाब होता था, अब वो टिकट 26 में से 36,000 रुपए में बिक रहा है और लोग मजबूरन खरीदने पर मजबूर दिखाई देते हैं।
उधर पाकिस्तान में फ़ज़ाई सफ़र करना आम आदमी के लिए रह गया है एक ख्वाब। इतने किराए बढ़ गए हैं कि फ़ज़ाई सफ़र करना अब मुमकिन नहीं रहा। इस पर बात करेंगे कोयटा से रिजवान सईद हमारे साथ हैं। रिजवान सईद, बताएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? इंतहाई मुश्किल हो चुका है सफ़र, क्या कहना है आम शहरियों का? बिल्कुल, मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह कोयटा से भी दीगर सूबों को जाने वाली जो फ़्लाइट्स हैं उनके किरायों में जो है वो होशरबा इजाफ़ा हुआ है, जिसकी वजह से जो कोयटा से दीगर जो मुल्क के हिस्सों में जाने वाले मुसाफिर हैं बज़रिया एयरलाइन, उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना है। हम इस वक्त एक ट्रैवल एजेंसी में मौजूद हैं जहाँ पर ट्रैवल एजेंट्स भी हैं। उनसे बात करते हैं कि ये इजाफे की जो वजह है बुनियादी वो क्या है और क्यों, और इस वक्त जो है वो कितना इजाफा किया गया है। सर, ये बताइएगा कि इस वक्त जो एयरलाइंस चल रही हैं कोयटा से मुल्क के दीगर हिस्सों में जाने वाली, कितना इजाफा किया गया है उनके किरायों में और इसकी बुनियादी वजह क्या है? सर, ऐसा है कि जैसे भी पीक सीज़न होता है आप लोगों के, जैसे कि दिसंबर चल रहा है, तो इसमें हर तरह से टैक्सेस हम पे बढ़ा दिए जाते हैं। एयरपोर्ट के टैक्सेस दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, अजीब अजीब किस्म के विद होल्डिंग टैक्स हम पर बढ़ रहे हैं। जो फेयर 12,000 रुपये का आ रहा था, जो 6,000 रुपये की सीट है, वो 25,000 रुपये की सोट हो रही है। बुनियादी वजह यही है कि बस गरीब को जो है रगड़ा जा रहा है और कुछ भी नहीं। जी, जैसा कि आपने देखा यहाँ पर जुल्म की इंतहा ये है कि 10,000 की जो एक नॉर्मल फेयर की टिकट है वो इस वक्त 25,000 रुपये से ज़ायद की जो है वो फ़रोख्त की जा रही है। बुनियादी वजह इसकी ये बताई जा रही है कि विद होल्डिंग टैक्स लगाए जा रहे हैं, एयरपोर्ट्स के टैक्स लगाए जा रहे हैं और एयरलाइंस की जानिब से भी जो है वो सीटें ब्लॉक कर दी जाती, जिसकी वजह से ट्रेवल एजेंट्स जो हैं वो इस रेट्स पर टिकटें ख़रीदने पर मजबूर हैं। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुतालबा उनका यही है कि अगर हुकूमत रिलीफ नहीं दे सकती तो इस एयरलाइंस को एक खास जो तबका है उसके लिए मुख्तस कर दिया जाए। ठीक है, शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। और ट्रैवल एजेंट्स का कहना है कि अंदरून मुल्क फ़ज़ाई किरायों में बेतहाशा इजाफे ने कारोबार करना मुश्किल बना दिया है। मजीद बात करेंगे महमूद रियाज से। महमूद, बताइएगा क्या सूरत हाल है? इस वक्त हम कराची की एक ट्रैवल एजेंसी में मौजूद हैं और ये खाली नशिस्तें, जो कि हफ्ते का दिन है और लोग यहाँ पर फ़ज़ाई टिकट लेने के लिए आते थे, ये खाली हैं और ये बता रही हैं हुकूमत की नाकामी, सिविल एविएशन की रेगुलेटरी जो पॉलिसी है उसकी नाकामी। इस वक्त हमारे पास ट्रैवल एजेंट है हमारे साथ, बहुत ज़्यादा कराची वाले तो पूरा पाकिस्तानी परेशान है। किराए कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं लाहौर इस्लामाबाद के ख़ास तौर पे? सर, अगर पहले से देखें तो पहले तो नॉर्मल फेयर जो होता था तकरीबन 14,200 या 13,500 होता था, तो अभी जो सिर्फ वन वे चल रहा है वो तकरीबन 24 से 36 तक फेयर जा रहा है सिर्फ वन वे, कराची इस्लामाबाद और कराची लाहौर का। अब कितना फेयर जो बढ़ गया है, ये कब तक जो इसमें कमी आने की तवक्को है? डॉलर के रेट भी बहुत हाई फाई हैं, इस वजह से टैक्सेस बढ़ गए और इस वजह से फेयर भी बहुत हाई चले। अच्छा, छुट्टियां होती थी, लोग बहुत ज़्यादा फैमिलीज लेके जाते थे, तो अब वो क्या कर रहे हैं? कोई ऑल्टरनेट उन्होंने सोचा ये क्या कर रहे हैं? पहले जब छुट्टियाँ पड़ती थी तो लोग ज़्यादातर जहाज़ में सफ़र करते थे, लेकिन अभी फेयर बढ़ने की वजह से तो कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो लोग अब ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं ताकि फेयर इतना आई है तो कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ये इस वक्त जो सूरत हाल है, जैसा कि हमने ट्रैवल एजेंसी दिखाया, कराची की अक्सर ट्रैवल एजेंसियाँ इसी वक्त जो हैं कि वो खाली हैं। टिकट ज़रूर डिमांड एंड सप्लाई का चक्कर है, बहुत ज़्यादा टिकट महंगे हैं। कराची से लाहौर और इस्लामाबाद का 36,000 रुपये तक का एक तरफा टिकट पहुंच चुका है, जो कि लोगों के लिए अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। इसलिए लोगों का यही कहना है कि जल्द से जल्द सिविल एविएशन जो है कोई इस पर एक्शन ले, किराया को शुक्रिया महमूद, आपने हमें आगाह किया। उधर नाज़रीन आपको बताएंगे जहाज़ में अंदरून मुल्क सफ़र करना बैरून मुल्क से भी अब महंगा हो चुका है। ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन नईम शरीफ कहते हैं कि जब लाइसेंस देने का काम सिविल एविएशन का है तो फिर कंट्रोल करना भी उन्हीं का काम बनता है। बात करेंगे हसन अब्बास। हसन, बताएगा ये क्या मामला है, आखिर किराए बढ़े क्यों? जी देखिए, अंदरूनी मुल्क सफ़र करने के लिए अगर आपको हवाई जहाज़ से सफ़र करना है तो टिकट आसमानों से बातें करने लग गए हैं। तकरीबन कराची से लाहौर और इस्लामाबाद अगर आपने सफ़र करना है तो 36,000 रुपये तक का जहाज़ का टिकट है, यानी कि एक इंतहाई तशवीश की बात है। एयर टिकट्स आसमानों में हमें दिखाई दे रहे हैं जहाज़ की तरह से। अब हम बात करेंगे ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन नईम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। नईम साहब, आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं, जो आप लोगों के पास पैसेंजर्स आ रहे हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं इतने महंगे टिकट्स या नहीं? हमारे पास तो हर तरह के पैसेंजर आते हैं और कॉर्पोरेट क्लाइंट हैं, उनको तो फ़र्क नहीं पड़ता इन फेयर से, जो भी फेयर हो जाए उन्होंने जाना है। लेकिन यहाँ पे हमें देखना चाहिए वो गरीब लोग जो हमारे पास बाज़ दफ़ा आ रहे हैं, किसी ने मजबूरी में जाना है, कोई डेथ केस है, किसी को कोई बीमार है जाना है उसने, वो यहाँ पे बड़े मजबूर हैं और बेचारे वो ना उनको ट्रेन पे टिकट है ना हवाई जहाज़ में। इतना टिकट हो गया है जो उनकी 2-2, 3-3 महीने की सैलरी नहीं कवर करती, वन वे फेयर इतना हुआ है।
اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ یہ تمام تر فیئرز جو ہیں وہ ہوا میں ہمیں باتیں کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، تو سول ایویشن کیا ان تمام تر اداروں کے ساتھ یا ایئر لائنس کے ساتھ کسی قسم کی کوارڈینیشن میں ہوتا ہے، یا آپ لوگوں کے ساتھ جو ٹریول ایجنٹس ہیں کوئی اس پہ نظر رکھنے والا ہے کہ ایئر ٹکٹس کی پرائس کہاں سے کہاں تک جا رہی ہیں؟ اس کی ریگولیٹری اتھارٹی، جب ان کو لائسنس دینے والی اتھارٹی سول ایویشن ہے تو اسی کا کام ہے کہ پیسنجروں کو بھی پروٹیکشن دے، اور یہ پیسنجر ہی بیٹھیں گے تو یہ ایئر لائن چلے گی، خالی ان کو لائسنس ہم نے دے دیا ہے، اب باقی ہم صرف لائسنسنگ اور ان کے آپریشن کو ہم دیکھیں گے، ان کے ریفنڈ ہیں، ان کی جو باقی جو سہولتیں ہیں وہ بھی سول ایویشن کا ہی کام ہے، اور سول ایویشن ہی ریگولیٹری ایک زمانے سے فیئر کے بارے میں تھی اور ہے۔ جی دیکھیں ہمارے ساتھ جو ہے وہ موجود تھے نعیم صاحب، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ سول ایویشن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے پیسنجرز کو پروٹیکٹ کریں، کیونکہ اگر لوگ سفر کریں گے جہاز کے اندر تبھی ایئر لائنیں جو ہیں وہ کام کر سکیں گی، کاروبار کر سکیں گی۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ حسن، آپ نے ہمیں آگاہ کیا۔ مزید خبریں ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی بالکل، فیاض سے کہا گیا کہ وزیراعظم تم سے بات کرنا چاہتے ہیں، اور کامیڈین شفاعت علی وزیراعظم کی آواز میں فیاض سے بات کرتے رہے، جس پر وہ ٹاور سے نیچے اتر آیا۔ بالکل ڈرامائی انداز میں بلو ایریا اسلام آباد میں موبائل ٹاور پر چڑھے اس شخص کو ٹاور سے نیچے اتارا گیا ہے، اور اس شخص سے کہا گیا کہ فیاض تم سے وزیراعظم بات کرنا چاہتے ہیں، جبکہ کامیڈین شفاعت علی وزیراعظم کی آواز میں فیاض سے بات کرتے رہے، جس پر وہ ٹاور سے نیچے اتر آیا۔ جی ہاں بالکل، کامیڈین شفاعت علی نے ایک زندگی بچا لی وزیراعظم کی میمکری کر کے، اور فون پر بات چیت کی اس شخص سے، اور پھر اس شخص کو قائل کیا کہ میں وزیراعظم پاکستان عمران خان ہوں اور میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، آپ نیچے آئیں اور پھر بات کریں گے۔ یاد رہے کہ اس شخص کا مطالبہ بھی یہی تھا کہ وہ وزیراعظم پاکستان عمران خان سے بات کرنا چاہتا ہے، اور یہ بھی کہا تھا کہ پھر وہ وزیراعظم بھی بننا چاہتا ہے تاکہ وہ قوم کے مسائل حل کر سکے۔ لیکن یہ بڑا کامیڈی سین ہوا جب شفاعت علی نے وزیراعظم پاکستان عمران خان کی آواز نکالی۔ ویسے تو ماوش اور ابو ذر وہ نکالتے ہی رہتے ہیں اس طرح کی آوازیں اور میمکری کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ بڑا اچھا کاز تھا کیونکہ انہوں نے ایک شخص کی جان بچا لی۔ جی بالکل، بہت اچھا کاز تھا اور اچھے طریقے سے اس کو ہینڈل کیا گیا، اور اسی طرح سے تمام انتظامیہ کے ساتھ مل کر یہ جو ہے قدم اٹھایا گیا اور بات کی گئی وزیراعظم عمران خان کی آواز میں، اور اس کے بعد جو ہے یہ شخص نیچے آ گیا اور اس کے بعد اس کو گرفتار کر دیا گیا۔ جی ہاں بالکل، بلو ایریا اسلام آباد میں کچھ دیر پہلے یہ واقعہ پیش آیا تھا جب موبائل ٹاور پر ایک شخص نے یہ دھمکی دی تھی کہ وہ وزیراعظم پاکستان بننا چاہتا ہے، اور سلسلے میں وزیراعظم عمران خان سے بات کرنا چاہتا ہے، اگر اس کی یہ فرمائش پوری نہ کی گئی تو وہ خودکشی کر لے گا۔ لیکن اس شخص کو انتہائی ڈرامائی انداز میں ٹاور سے نیچے اتارا گیا ہے۔ اس شخص کا نام فیاض ہے۔ فیاض سے کہا گیا کہ وزیراعظم پاکستان تم سے بات کرنا چاہتے ہیں، جبکہ کامیڈین شفاعت علی وزیراعظم کی میمکری کرتے ہوئے اس شخص سے بات کرتے رہے، اور اس سے کہا کہ میں وزیراعظم پاکستان بات کر رہا ہوں اور تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، جس پر یہ شخص فیاض ٹاور سے نیچے اتر آیا۔ ٹاور کرین کا استعمال بھی کیا گیا اس سے پہلے ریسکیو ٹیموں کی جانب سے، پولیس کی جانب سے، لیکن خدشہ اس بات کا تھا کہ اگر اوپر جاتے ہیں اور اس شخص کو نیچے اتارنے کی کوشش کرتے ہیں تو شاید یہ چھلانگ نہ لگا دے۔ اس کے پیش نظر یہ اقدام نہیں اٹھایا گیا، اور پھر بڑا سوچ بچار کر کے یہ فیصلہ سامنے آیا کہ شفاعت علی اگر یہ کام کر دیں تو پھر کیا ہی بات ہے، اور شفاعت علی نے کر کے بھی دکھایا۔ وزیراعظم پاکستان عمران خان کی آواز شفاعت علی نے ایسی نکالی، اس طرح کی میمکری کی کہ یہ شخص فیاض قائل ہو گیا کہ یہ وزیراعظم پاکستان عمران خان ہی ہیں، اور پھر وہ نیچے خود بخود آ گیا۔ اب اسے پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ ڈرامائی انداز، شروعات کچھ اور ہوئی، ابھی کچھ اور، لیکن ابھی کچھ اور۔ کامیڈین شفاعت علی ہمارے ساتھ ہم اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ شفاعت، بہت شکریہ سب سے پہلے تو آپ کا کہ آپ نے ایک زندگی بچا لی اور ایک ناسمجھ شخص کو ٹاور سے نیچے اترنے میں مدد کی، بلکہ یہ آپ نے پورے پاکستان پہ ایک احسان کیا ہے، ورنہ ایک کوئی ناخوشگوار واقعہ بھی پیش آ سکتا تھا۔ کیسے خیال آیا آپ کو؟ بہت شکریہ۔ مجھے پولیس کی جانب سے اپروچ کیا گیا تھا، اسلام آباد پولیس کی جانب سے مجھے کہا گیا کہ یہ شخص قائل نہیں ہو رہا نیچے اترنے کے لیے، اور پہلے بھی ایک دفعہ اس کو کال کیا جا چکا ہے، لیکن یہ بضد ہے کہ اس کو عمران خان ہی اور اصلی عمران خان سے بات کرنی، جس پر مجھے لگا کہ شاید یہ لڑکا اس حد تک تو سمجھدار ہے کہ یہ اصلی اور نقلی عمران خان میں فرق کر سکتا ہے۔ پھر جب اس سے بات کی اور جب بات کرنی شروع کی تو اس نے کہا کہ یہ عمران خان کی آواز نہیں ہے، میں نے 6 سال خدمت کی ہے عمران خان کی، میں پہچانتا ہوں یہ کس کی آواز ہے۔ تو مجھے بھی تھوڑا سا دھڑکا لگا، لیکن تھوڑا سا جذباتیت نے کھیل کے فائنلی اس کو قائل کر ہی لیا۔ اچھی بات یہ کہ زندگی بچ گئی،
اور اس نے جب فون رکھنے لگا تو اس کے الفاظ تھے کہ خان صاحب میں اگر نیچے اتر رہا ہوں تو یہ آپ کے لیے نہیں اتر رہا، یہ میں پاکستان کے لیے اتر رہا ہوں. ٹھیک ہے شفاعت صاحب یہ بتائیے گا، جس طرح صاحب نے بتایا کہ آپ نے ان سے بات کی، بات کیا کی جس کے بعد وہ آخر کار نیچے اتر آیا؟ جو آپ نے کہا جذباتیت سے اس کے ساتھ کچھ گفتگو کی تھی آپ نے. ہاں وہ قائل نہیں ہو رہا تھا، جیسے میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ وہ اس نے کہا یہ عمران خان کی آواز نہیں ہے، تو میں نے کہا شفاعت اس طرح نہیں، شفاعت اسی انداز میں بیان کریں جس انداز سے آپ نے فیاض کو قائل کیا. میں نے اس کو یہ کہا کہ میں 6 سال تم نے میری خدمت کی ہے، تم میری آواز نہیں پہچانتے. یعنی ایک آدمی مجھے کہہ رہا ہے کہ میں عمران خان کا خدمت کرتا رہا ہوں اور وہ میری آواز نہیں پہچانتا. یہ مجھے یقین نہیں آتا میرا کارکن، میرا ٹائیگر کوئی ایسے بات کر سکتا. تو اس پہ اس شخص کو لگا کہ واقعی وہ غلط، اور تھوڑی سی جذباتیت دکھائی اس نے. کہا کہ میں معیشت ٹھیک کرنا چاہتا ہوں، ملک قرضے میں چلا گیا، میں اپنے آپ کو ختم اس لیے کر رہا ہوں کہ میں پاکستان تباہ نہیں دیکھ سکتا. تو میں نے کہا آپ آ جائیں، آپ آ کے ٹیک اوور کر لیں، اس میں مسئلہ کیا ہے؟ اس پہ اس صاحب کو لگا کہ واقعی میں کوئی اصلی آدمی ہوں. جبکہ مجھے یقین کریں جب اس کی وہ ذہنی حالت تھی، یہ مینٹلی چیلنج لوگ ان کی حساسیت اتنی شدید ہوتی ہے کہ یہ معاملات کو اس طرح سے برداشت نہیں کر پاتے جس طرح ہم اور آپ برداشت کر جاتے ہیں. ٹھیک، شفاعت علی بہت شکریہ آپ کا، اور یقیناً قوم بھی شکر گزار ہے آپ کے اس احسن اقدام پر. اور ابھی آپ کو براہ راست لے چلیں گے وزیر خارجہ شاہ محمود اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. علیحدہ تشخص ملنا چاہیے، یہ ہمارے منشور کا حصہ ہے، اور جو صاحبان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم کے ساتھ منسلک ہو کے جنہوں نے انتخابات میں حصہ لیا انہوں نے اسے ذہنی طور پر قبول کیا. چاہے صوبہ محاذ کے لوگ تھے یا دیگر حضرات جو ہمارے ساتھ آئے، انہوں نے ہمارے اس منشور کو تسلیم کیا اور اس کے وہ پابند ہیں. اب اس کے لیے ایگزیکٹو طور پر ایک بنیادی فیصلہ ہو چکا ہے کہ انشاءاللہ کہ ایک سیکریٹریٹ قائم ہوگا تاکہ لوگوں کو ان کے فیصلے قریب تر ہو سکیں، اور ڈیولوشن آف پاور کے کانسیپٹ کو سامنے رکھتے ہوئے انہیں اپنے گھر کے قریب ان کے مسائل حل ہو سکے. اس کے لیے سیکریٹریٹ کا قائم ہونا، اس کے لیے افسران کی تعیناتی ہونی، اس کے لیے ایک جنوبی پنجاب کے لیے ایک علیحدہ سالانہ ترقیاتی بجٹ کا تصور ہونا، کیونکہ ماضی میں ہوتا یہ تھا کہ ایک بجٹ بنا دیا جاتا تھا اور اس میں کہہ دیا جاتا تھا کہ جنوبی پنجاب کے لیے اتنا پیسہ ہوگا، لیکن دوران سال ری اپروپریشن کے ذریعے وہ پیسہ منتقل ہو جاتا تھا، اور دیکھا بہت سا پیسہ جو اس علاقے کے لیے مختص کیا گیا وہ پھر لاہور منتقل کر دیا گیا اور شہروں کی طرف منتقل کر دیا گیا. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہماری گورنمنٹ کی، عمران خان صاحب کی یہ خواہش ہے، ہماری چیف منسٹر کی خواہش ہے کہ جنوبی پنجاب کا ایک علیحدہ سالانہ ترقیاتی پروگرام ہو، یہاں کے علیحدہ آفیسرز ہوں، اور جو ڈپارٹمنٹ جو ڈیوالو ہو چکے ہیں. دیکھیے اب ہم کہتے ہیں کہ اختیارات نیچے کی طرف مرکز سے صوبے کی طرف منتقل ہوں، تو 18ویں ترمیم میں ایک پیش رفت ہوئی لیکن وہ ناکافی ہے. وہ تو صوبے کی طرف ہوئی لیکن صوبوں کو اختیارات آگے بھی منتقل کرنے ہیں، اضلاع کی طرف کرنے ہیں، ڈویژن کی طرف کرنے ہیں، اور خاص طور پہ اتنا بڑا صوبہ جو 12 کروڑ کی آبادی کا صوبہ پنجاب ہے، اس کو ایک جگہ سے مینیج کرنا فزیکلی ناممکن دکھائی دیتا ہے. تو اس کے لیے اقدامات لیے جا رہے ہیں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ آج جو اگلا مالی سال ہے اسے عملی جامہ پہنایا جائے گا. میں نے تو اس دن شہباز شریف صاحب بھی اسمبلی میں موجود تھے، بلاول بھٹو بھی، زرداری بھی وہاں موجود تھے. میں نے انہیں کہا کہ دیکھیے یہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کا وقت نہیں ہے، ہم نے ایک دوسرے کو نیچا نہیں دکھانا. اگر آپ واقعتاً مخلص ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ علاقہ ترقی کرے، اس کی پسماندگی دور ہو، تو سیاست سے بالا تر ہو کر دنیا میں ایسا ہوا ہے. لاہور لیے چلیں گے جہاں پر وزیر خان اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. میں صرف واضح کر چاہتا ہوں ایک چیز کہ دیکھیں میرا انٹرسٹ کہ ٹیکس وہ اس لیے نہیں کہ میری آپ سے دوستیاں ہیں، وہ اس لیے نہیں کہ میرا یہاں پرانا دوست طارق شفیع بیٹھے ہوئے ہیں جس کی میں ساری زندگی سنتا رہا کہ جو مشکلات اس کو اپنی ٹیکسٹائل کے اندر پڑی رہی اور جو
हुकूमत की रुकावटें रास्ते में पड़ी रही और जो वो मैं 30 सालों से सुनता रहा हूं तारिक की ये सारी कहानियां, तो मैं आगाह हूं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर किस तरह के पीरियोडिकल प्रॉब्लम्स आए हैं। यहाँ उमर फारूक गोल्डी भी बैठे हुए हैं, मेरे दोस्त, जिसने एंड में अपनी टेक्सटाइल बेच ही दी, इतने प्रॉब्लम्स आए। तो मैं ये आगाह हूं, लेकिन मैं इसलिए नहीं आपकी मदद कर रहा क्योंकि मुझे कोई मेरी दोस्ती है या कुछ। मेरा इंटरेस्ट क्या है? मेरे दो इंटरेस्ट हैं। एक कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारी तकरीबन 40% आबादी गुर्बत की लकीर के ऊपर या नीचे है, यानी मेरा इंटरेस्ट ये है कि जो हमारी इस वक्त जो गुर्बत है पाकिस्तान में, इसको कैसे हम कम कर सकते हैं, कैसे हम पाकिस्तान में गुर्बत को टैग कर सकते हैं। तो वो जो चाइना का जो हमने पूरा स्टडी किया मॉडल, कहीं भी दुनिया में इस तरह का नहीं, कोई है ही नहीं मिसाल कि 70 करोड़ लोगों को 30 साल में लोगों को गुर्बत से निकालो, ये कोई मॉडल दुनिया में नहीं है। तो जो वहां भी जाए, वहां भी जब चाइना गए तो उन्होंने हमें डिटेल प्रेजेंटेशंस दी। उससे पहले भी चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी की जब लोग आते थे हमारे से मिलने के लिए, जब अभी पार्टी पावर में नहीं थी, तब भी उनसे जो प्रेजेंटेशंस ली तो उसमें उन्होंने वेरियस स्टेप्स बताए। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप यह है कि जब तक एक माशरे में वेल्थ क्रिएशन नहीं होती, जब तक एक पैसा नहीं बनता माशरे में, तो आपका जब तक पाए बड़ा नहीं होता तो आप कैसे निचले तबके की मदद कर सकते हैं। तो मेरा इंटरेस्ट इसलिए ये है कि हमारी जो मेन लीडिंग इंडस्ट्री है वो टेक्सटाइल है। तो अगर हम आपकी मदद करेंगे, आपके लिए रुकावटें खत्म करेंगे, आसानियां पैदा करेंगे, तो हमारे लिए इस मुल्क में वेल्थ क्रिएशन बढ़ेगी और उससे फिर हम अपने निचले गरीबों का फायदा कराएंगे। और दूसरी मेरी इंटरेस्ट इसलिए भी है कि आते साथ ही हमें जो करंट अकाउंट डेफिसिट सामने आया और उसकी वजह से हमें अप्रोच करना पड़ा अपने दोस्त ममालिक से पैसे का कि हमें हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बोल्स्टर अप करें, वहाँ हमें रिजर्व में अपने पैसे डालें। तो मुझे तब भी एहसास हुआ कि चले एक दफ़ा तो हम अब कर रहे हैं, मजबूर हैं, लेकिन कभी भी किसी कौम को उनके लीडर्स का ये काम नहीं होना चाहिए कि लोगों से जाके पैसे हेल्प मांगे, क्योंकि जब आप हेल्प मांगते हैं, देखें, जब आप लोगों से इमदाद किसी की तरह फेवर लेते हैं, कर्जा लेते हैं, एड लेते हैं, आप अपनी सॉवरेंटी कॉम्प्रोमाइज करते हैं, इज्जत खो बैठता है। घर में जब एक आदमी मुसलसल कर्जे लेता रहता है, उस घर की इज्जत चली जाती है। इसलिए मैं पाकिस्तान को एक खुददार मुल्क देखना चाहता हूं। मैं जब जो भी इन्होंने कहा ना कि 5th क्लास में इनको मैंने हाथ मिलाया इनसे जब ये छोटे थे, मैं जब इनकी उम्र में तब मिला, यानी जब मैं 5th क्लास में था, तो पाकिस्तान का दुनिया में एक इज्जत थी। और सिर्फ आप वो यूब खान की विजिट देख लें, बरतानिया जब वो गया और जब वो अमेरिका गया, तो आपको नजर आएगा कि मुल्क का ये हालात नहीं थे जो अब हैं। और वो इज्जत इसलिए थी कि पाकिस्तान, जिसको एशियन टाइगर, जो बाद में एशियन टाइगर्स बने, वो पाकिस्तान वो एशियन टाइगर बनने जा रहा था। और हमने सीरीज ऑफ और रुका कैसे, क्या प्रॉब्लम आया। और मैं वो आपको अपने तजर्बे से बताता हूं कि जब हमारी पार्टी में मिराज मोहम्मद खान आए, 98 में मिराज मोहम्मद खान ने हमारी पार्टी ज्वाइन की, तो मैं मिराज मोहम्मद खान की तकरीरें सुनता था। हम तो नए नए तब पॉलिटिक्स में आए थे, तो वो बड़े सीनियर आदमी जुल्फिकार अली भुट्टो के एक वक्त पे राइट हैंड मैन थे। तो हम जब उनकी तकरीरें सुनते थे, और मैं 98 की बात कर रहा हूं, तो तब भी वो सरमायाकार को उड़ाते थे, जागीरदार और सरमायाकार, और वो कहते थे कि इन्होंने कैसे मुल्क को तबाह किया वगैरह वगैरह वगैरह। तो तब भी मैं सोचता था कि अगर आप सरमायाकारी को बुरा कहेंगे तो मुल्क तो प्रॉस्पर ही नहीं कर सकता। और ये एक माइंडसेट आ गया 1970s से। जो 1970s की नेशनलाइजेशन थी, वो एक
रिएक्शन आया, 22 फैमिलीज थी, सारे मुल्क की दौलत उनके पास चली गई, तो उसका तरीका ये नहीं था कि जो स्टेप्स लिए गए 70s में वो फिर एक इंक्लूसिव ग्रोथ था कि चलें उन्होंने पैसा बनाया लेकिन और भी मौका मिले, मोनोपलीज खत्म हो, आम आदमी को मौका मिले compete करने का, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप हो। लेकिन वो जो स्टेप्स लिए गए उसने वेल्थ क्रिएशन को बुरा कर दिया, सरमायाकार को बुरा कह दिया, और वो जो एक माइंडसेट आया वो अभी तक अनफॉर्चुनेटली हमारे कई पॉलिटिशियंस में भी है, हमारे ब्यूरोक्रेट्स के अंदर भी ये माइंडसेट है कि वो कुछ अजीब तरह देखते हैं कि जो पैसा बना रहा है तो उसको एक बुरी नजर से देखते हैं। हमें जो भी जायज तरीके से, मैं फिर से एम्फसाइज करता हूं, जायज तरीके से जो पैसा बनाता है वो मुल्क का फायदा पहुंचाता है, नौकरियां देता है, वेल्थ क्रिएट करता है, टैक्सेस देता है, मौका एक गवर्नमेंट के पास रेवेन्यूज आते हैं, और जो टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट्स करते हैं, और एक्सपोर्ट्स करते हैं तो ये जो करंट हमारा सिचुएशन है करंट अकाउंट डेफिसिट का, ये ना हो। तो मैं गौहर आपको आज श्योर करता हूं कि ये हमारी पॉलिसी, हमारी जो आगे जो सोच रख रहे हैं उसका ये हिस्सा है कि हमने अपनी इंडस्ट्री के लिए वो एनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करनी है जिसमें वो लोग और पैसा बनाएं और फिर इन्वेस्ट करें। और जितना दो बड़े सक्सेसफुल लीडर्स जिन्होंने अपनी इकोनॉमीज को ट्रांसफॉर्म किया, दोनों ने एक ही बात की मुझे से, महातिर मोहम्मद आज से 18 साल पहले, और अभी फिर उन्होंने ये कहा कि जब मलेशिया को उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया तो उन्होंने मौका दिया, एंटरप्रेन्योर्स को मौका दिया, वेल्थ क्रिएशन का मौका दिया। और शेख मोहम्मद ने अभी जब हम गए वहां दुबई में तो उन्होंने कहा कि उनके वालिद ने उनको एक बड़ी चीज कही थी जो कि आप शायद दुबई का जो मिरेकल है, उन्होंने कहा कि उनके वालिद ने कहा कि लोगों को पैसा बनाने दो, जब लोग पैसा बनाते हैं और लोग आते हैं पैसा बनाने के लिए, और एक अगर प्रॉफिट बनता है तो लोग और आके इन्वेस्ट करते हैं। और वो बिल्कुल ठीक बात है कि प्रॉफिट, मेकिंग प्रॉफिट्स और प्रॉफिटेरिंग के अंदर बड़ा फर्क है। जो यहां जिसकी वजह से बदनामी कई दफा सरमायाकार को करते हैं वो प्रॉफिटेरिंग की वजह से करते हैं, फिर कर्जे लेके माफ करवाना, यानी फायदा उठाना एक सिस्टम से, टैक्स ना देना। इसलिए तो हम जो सिस्टम चाहते हैं, हम आपके लिए पूरी एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे ताकि आपके लिए आसानी हो। जिस तरह ये जो आपने अभी बात की एनर्जी की, बिल्कुल अगर आपके कंपेटिटर्स को सस्ती बिजली मिल रही है और गैस मिल रही है और आप महंगे हैं तो इवेंचुअली आप उनका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। इंशाल्लाह इसी तरह हम आपके लिए आसानी पैदा करेंगे। ये जो आप बात कर रहे हैं रीबेट्स की, ये भी बिल्कुल एक अनफेयर है कि एक बिजनेस, और स्पेशली चले आप तो बड़े, फिर भी आप में से कई लोग बड़े हैं, जो छोटा बिजनेसमैन है जिसके पास इतना कैपिटल ही नहीं, वो उसको अगर आप रिबेट नहीं देंगे या उसको रिफंड नहीं करेंगे तो वो तो बैंकरप्ट हो जाएगा। और ये जो आपकी इंडस्ट्री बंद है उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। तो आप ये देखेंगे अभी हमारे पास मुश्किलात हैं, ऑब्वियसली बड़े डेफिसिट्स हैं, हमारे पास उस तरह के पैसा नहीं है। लेकिन ये मैं आपको ये वाज़ेह कर दूं कि जो मेरा ये 4 महीने का तजर्बा हुआ है, पाकिस्तान को कोई भी, जो बाहर की दुनिया सब ये देखती है कि जब भी इस मुल्क ने अपना गवर्नेंस सिस्टम ठीक कर दिया ये टेक ऑफ कर जाएगी। और उसकी वजह है वो एक देखते हैं, वो बाहर की दुनिया देखती है कि 21 करोड़ आवाम है, यहाँ एक दुनिया का सेकंड यंगेस्ट पॉपुलेशन है, तो लोग दुनिया और तरह हमें देखती है। और मैंने हैरान हूं कि जिस तरह का इंटरेस्ट है आज पाकिस्तान में, इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट है बाहर से, ये भी जो इन्होंने हमारे से, जो हमारे दोस्तों ने भी जिस तरह की हमें पैसा दिया है, ये भी अनप्रेसिडेंटेड है। और कोई पैसे के साथ स्ट्रिंग्स अटैच नहीं है, यानी अमूमन सोचते हैं ना कि जी पैसा दो। आज तक हम पैसा लेके लोगों की जंगें लड़ते रहे हैं। हमारी एड या जो पैसा होता है, जो जिस तरह की भी इमदाद होती है, वो अटैच्ड होती है कि हमने किसी के लिए कुछ करना है। मैं आज आपके सामने कह रहा हूं कि जो भी अभी तक हमारे पास आ रहा है, अभी आया है और आने वाला है, किसी में किसी किस्म की पाकिस्तान की कमिटमेंट नहीं है कि हम अपनी जनाब फौज इस्तेमाल करने देंगे किसी दूसरी दुनिया के लिए। बल्कि उल्टा है, अब पाकिस्तान का पीस मेकर्स का रोल बन गया है।
अभी ये जो तालिबान की मीटिंग करवाई है अमेरिकन के साथ, ये लैंडमार्क मीटिंग हुई है। और उससे पहले हमने ये भी ऑफर किया यमन के अंदर भी पीस, और बल्कि हम ये चाहते हैं कि ईरान और सऊदी अरेबिया के भी हम ताल्लुकात बेहतर करें। तो मैं आखिर में गौहर आपको ये श्योर करता हूं कि जितना भी हो सकेगा इन सर्कमस्टांसेस के अंदर, और ये थोड़ा सा क्रंच है हमारा, और ये अल्लाह का शुक्र है कि जो मुश्किल वक्त था उससे हम निकल गए हैं, तो इंशाल्लाह हम आपकी पूरी मदद करेंगे, इसलिए कि आप रोज़गार भी लोगों को देंगे जैसी जैसी आपकी इंडस्ट्री उठती रहे, और उसके अलावा एक्सपोर्ट्स भी आप बढ़ेंगी, जिसके लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त कि हमारा ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट है ये कम से कम होता जाए। तो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ, और आपने जो मुझे इज्जत दी, बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान लाहौर में एक तकरीब से खिताब कर रहे थे, आपने बराह रास्त मुलाहिज़ा किया। जी बिल्कुल, ये मनाज़िर भी आप देख सकते हैं। इस वक्त लाहौर में ये तकरीब जारी है। इसी के साथ